Hello everyone, myself Jaya Agarwal, Assistant Professor Political Science from SPCGC Ajmer. This is paper first of BA part first, Foundations of Political Science, and in this video we are going to study about the idealistic theory, also known as absolute theory or metaphysical theory or philosophical theory. So it is also known as absolute theory because it gives absolute power to the state. It is also known as metaphysical theory or philosophical theory because uh, its exponents speak about the state in metaphysical or philosophical terms. So we can see here the meaning as according to Aristotle, state came into existence for the sake of mere life, but now it continues to exist for the sake of good life. So according to this idealistic theory, the state alone is self-sufficient and is capable of living the good life and of realizing the highest ends of his existence. Now we will see basic features of this theory. First one is man is a social animal, and the development of his personality is possible only in the society. And if there is separation from society, the individual has no significant role to play, and nor is his progress possible in the absence of the society. So first one is society is must for a person. Second one is the state is an organic unity, and as and the state can be termed here or can be compared by human body, and just an organ is the part of the body, so an individual is the organ of the state. Just as an organ cannot be more important than the whole body, so the individual cannot be more important than the state. Thus the welfare of the individual lies in the welfare of the state. And next one is state is a moral institution. There are many moral institutions like family, church, etc., yet the state is the supreme moral institution. So the development of human personality is possible only in the state and only with the help of the state. Next one is uh, the state is creator and protector of the rights of the individual, and the state is the source of freedom and other rights, and the individual cannot have his freedom or other rights from any other source. It is only the state that protects the rights of the individual. Next one is the state has got its independent personality and will. So according to this theory, the state is not the sum total of the individual, but it has its independent personality and will, and it represents their real will also of its exponents, and the state acts according to the real will of all. Next one is the state is an end itself. uh, State can be considered as an end itself and the individual as a means. And next one is the state is a divine institution, and so here comes the state as a divine or spiritual institution, and it is all powerful and absolute institution as well. And next one is state is supreme of all institutions. So these are the basic features or characteristics of idealistic theory. Now we will study or have a look, and we will study about the criticism of this theory. First one is this theory is purely abstract. So this theory does not throw any shadow of light on the existing social conditions, and it is purely an abstract theory, and it is related more to spiritualism than to materialism. So this theory is not practical. Second one is the distinction between the actual and real will is confusing, and this theory is based on the ground that this theory makes provision for the independent personality of the state, which is distinguished from that of an organized nation. Besides, the distinction between the actual and real will is purely abstract. Next one is it sacrifices the liberty of the individual, and as this theory regards the state as an end and the individual as a means, and thus it sacrifices the liberty of the individual. So next one is
it regards the functions of the state as of negative nature. According to this theory, the functions of the state are not of positive nature but of negative nature, and it does not recognize the state as socialistic institution. Next one is the state is not perfect. So this theory regards the state as perfect, but in reality there is no state which is not imperfect. And next one is state is not omnipotent. And the most eminent of the critics of idealism is so many thinkers are there, and they have opposed the state being considered it as as it exercises all the powers, which is quite wrong. आज हम लोग बात कर रहे हैं राज्य की आदर्शवादी विचारधारा, या हमारा जो राजनीति विज्ञान सब्जेक्ट है इसके अंतर्गत आदर्शवादी विचारधारा के बारे में, जिसे कि एब्सोल्यूट थ्योरी और जो मेटाफिजिकल थ्योरी और फिलोसोफिकल थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। यह एब्सोल्यूट थ्योरी इसलिए कहलाती है क्योंकि इसके अंतर्गत यह माना जाता है कि राज्य सर्वशक्तिशाली है, राज्य के पास में संपूर्ण सत्ता है, उसकी शक्ति पर कोई भी अंकुश नहीं है, और वह अपनी शक्तियों का मनमाने ढंग से हम लोग कह सकते हैं प्रयोग करता है। और क्योंकि इसमें थोड़ा सा मेटाफिजिकल या जो फिलोसोफिकल दार्शनिक ये एक सिद्धांत माना जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत राज्य को बिल्कुल इसी तरीके का एक स्टेटस या इस तरीके का एक हम लोग कह सकते हैं कि एक तरीके से इसका लुक दिया गया है, ये माना जाता है जो भी आइडियलिस्टिक आदर्शवादी विचारक हैं। सो हम लोग इसके बेसिक फीचर्स देख लेते हैं। मुख्य विशेषताओं में पहला हम लोग देख सकते हैं, पहला आ जाता है कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो व्यक्ति है वह एक सामाजिक प्राणी है। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, हम लोग अरस्तु की धारणा से स्टार्ट कर सकते हैं, जिन्होंने मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी बताया है, और हमारी व्यक्तित्व का विकास भी राज्य के अंतर्गत रहकर ही पॉसिबल है। राज्य से अलग रहकर हम लोग ना तो कोई भी रोल प्ले कर सकते हैं, ना हम कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, ना ही हम लोग अपना विकास कर सकते हैं। दूसरा आ जाता है इसके अंतर्गत राज्य का सावयव सिद्धांत आ जाता है। सावयव सिद्धांत अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है, और सावयव सिद्धांत का अर्थ होता है जिसके अंतर्गत हम लोग राज्य की तुलना मानव शरीर से करते हैं। तो राज्य को मानव शरीर मानते हुए राज्य की तुलना मानव शरीर से, उसके अंगों से किया जाना, इसे हम लोग सावयव सिद्धांत कहते हैं राज्य का। तो जो आदर्शवादी विचारधारा है यह राज्य को मानव शरीर के समान ही मानकर सावयव सिद्धांत का प्रतिपादन करती है। और जिस प्रकार मानव शरीर के अंग होते हैं उसी प्रकार जो व्यक्ति हैं ये भी राज्य के अंग होते हैं, और इसीलिए व्यक्ति का जो कल्याण है, राज्य के कल्याण में ही व्यक्ति का कल्याण निहित है। नेक्स्ट आ जाता है राज्य एक नैतिक संस्था है। यद्यपि अनेक अन्य नैतिक संस्थाएं भी होती हैं, जैसे परिवार है, चर्च है, धार्मिक जो इंस्टीट्यूशंस हैं, लेकिन राज्य इन सब में सुप्रीम मोरल इंस्टीट्यूशन है, सर्वोच्च नैतिक संस्था है। नेक्स्ट आ जाता है आदर्शवादी विचारधारा के अनुसार राज्य है वह अधिकारों का जन्मदाता है और अधिकारों का संरक्षक है। व्यक्ति को वो अधिकार देता है, उनकी सुरक्षा करता है, और व्यक्ति को वो ही अधिकार प्राप्त हो सकते हैं जो राज्यों ने देता है। और दूसरा इसके अंतर्गत ये माना जाता है कि राज्य के विरुद्ध व्यक्ति को कोई भी अधिकार नहीं है। काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारी बुक का चैप्टर है। नेक्स्ट आ जाता है द स्टेट हैज़ गोट इट्स इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी एंड विल। तो इसके अंतर्गत ये माना जाता है कि जो राज्य है वह अपने व्यक्तियों का केवल समूह या एक संघ नहीं है, बल्कि राज्य में रहने वाले जो व्यक्ति हैं उनसे अलग भी उसकी अपनी स्वतंत्र, उसका अपना व्यक्तित्व है, अपना अस्तित्व है, उसकी इच्छा है, और ये इच्छा उसमें निवास करने वाली व्यक्तियों से सर्वोच्च है। नेक्स्ट आ जाता है द स्टेट इज एन एंड इटसेल्फ। आदर्शवादी विचारधारा के अंतर्गत ये माना जाता है कि राज्य है यह स्वयं में एक साध्य है और व्यक्ति इसके कल्याण के साधन है। इसीलिए व्यक्तियों का ये कार्य है कि वह राज्य के कल्याण के लिए सभी कार्य करे। नेक्स्ट आ जाता है स्टेट इज अ डिवाइन इंस्टीट्यूशन। इसके अंतर्गत राज्य को एक दैवीय संस्था या स्पिरिचुअल आध्यात्मिक संस्था माना जाता है जो कि सर्वशक्तिशाली है और एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन है। नेक्स्ट आ जाता है स्टेट इज सुप्रीम ऑफ ऑल ह्यूमन इंस्टीट्यूशंस, कि आप अभी तक मानव निर्मित मानवीय जीवन से संबंधित जितनी संस्थाएं रही हैं राज्य उन सब में सुप्रीम है, सर्वोच्च है।
इसकी हम लोग क्रिटिसिज्म देख लेते हैं। जब हम लोग इसको क्रिटिसाइज़ करते हैं आइडियलिस्टिक थ्योरी को, आदर्शवादी विचारधारा को, जब हम लोग इसकी आलोचना करते हैं तो सबसे पहला तो हम लोग, जैसे हमने ऊपर फीचर्स में हम लोगों ने किया है, तो पहला यही आ जाता है कि व्यक्ति का उद्देश्य होता है अपने व्यक्तित्व का विकास करना, अपने व्यक्तित्व का डेवलपमेंट करना। होल एंड सोल हमारा एम होता है, हमारा विकास, हमारी प्रोग्रेस। लेकिन जैसे ही हम लोग स्टेट को एब्सोल्यूट पावर्स दे देते हैं, बिल्कुल सभी शक्तियाँ उसे दे देते हैं, वैसे ही हम लोग देखते हैं कि हमारा विकास रुक जाता है। तो जो इसका बेसिक हम लोग क्रिटिसाइज को कर सकते हैं वो है कि राज्य को सभी शक्तियां देना गलत है, क्योंकि राज्य को सभी शक्तियां देना या निरंकुश शक्तियां देने का परिणाम होता है व्यक्ति का विकास या व्यक्ति का डेवलपमेंट रुक जाना, जो कि हमारा सर्वोच्च उद्देश्य है। तो जब हम लोग इसको क्रिटिसाइज करते हैं तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि दिस थ्योरी इज़ प्योरली एब्स्ट्रैक्ट, और ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये बिल्कुल भी व्यावहारिक नहीं है, क्योंकि इसके अंतर्गत आध्यात्मिकता पर ज़्यादा जोर दिया गया है और भौतिकता को छोड़ दिया है। और इसके साथ ही जो एग्जिस्टिंग सोशल कंडीशंस है, जो विद्यमान सामाजिक परिस्थितियाँ हैं, उसके ऊपर भी इसका कोई भी फोकस नहीं है। सेकंड आ जाता है कि जो हमारी एक्चुअल और रियल जो विल का हमने कॉन्सेप्ट है हमारे पास में, तो उनके बीच में जो डिस्टिंक्शन करना, उनके बीच में अंतर करना, ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। और ये जो आइडियलिस्टिक थ्योरी है ये खुद भी इसे अच्छे से क्लियर नहीं करती है। नेक्स्ट आ जाता है इट सेक्रीफाइसेस द लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल एज आई हैव टॉक्ड अर्लियर। तो इसके अंतर्गत व्यक्ति की, हमारी खुद की कोई स्वतंत्रता नहीं रह जाती है, हमारे कोई अधिकार नहीं रह जाते हैं, हमारा किसी भी प्रकार का कोई भी विकास नहीं रह जाता है। और वैसे भी स्वतंत्रता के अभाव में व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता है। तो हमारे जीवन के हर पक्ष पर क्योंकि राज्य नियंत्रण रखता है, इसलिए ये कहा जाता है कि इसके अंतर्गत व्यक्ति की स्वतंत्रता बिल्कुल ही कह सकते हैं छिन जाती है, हमें किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता या अधिकार नहीं रह जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इट रिगार्ड्स द फंक्शंस ऑफ द स्टेट एज ऑफ नेगेटिव नेचर। तो राज्य है, हम लोगों ने का पहले भी हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में हमने पॉजिटिव स्टेट की हम लोग धारणा पढ़ चुके हैं। सकारात्मक राज्य का अर्थ होता है कि एक राज्य जो अपने नागरिकों को सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराता है, उनके विकास के लिए कार्य करता है। लेकिन जैसे ही हम लोग आदर्शवादी विचारधारा हम लोग देखते हैं कि यहाँ राज्य के कार्य हैं वो पॉजिटिव नहीं है, वरन नकारात्मक प्रकृति के हैं। नेक्स्ट आ जाता है स्टेट इज़ नॉट परफेक्ट। तो इसके अंतर्गत राज्य है उसको सभी प्रकार के दोषों से मुक्त माना जाता है, उसे बिल्कुल परफेक्ट माना जाता है। लेकिन ये राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी होने के नाते हम लोग जानते हैं कि राज्य है वो एक परफेक्ट इंस्टीट्यूशन नहीं है। तो जिसको क्रिटिसाइज करते हुए जो आलोचक है उनका ये मानना है कि राज्य है वो परफेक्ट नहीं है। और लास्ट आ जाता है स्टेट इज़ नॉट ओमनीपोटेंट। तो इसके अंतर्गत आ जाता है राज्य सर्वशक्तिशाली नहीं है, नहीं है, प्लस राज्य सर्वशक्तिशाली नहीं भी होना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति और राज्य का जो संबंध है इसके अंतर्गत व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता, अधिकार, उसकी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट या विकास उतना ही आवश्यक है जितना कि हम राज्य का स्वयं का विकास। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच।